वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी। कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट भी भेजे व्हाट्सएप पे, मैंने सॉल्यूशन उनका भेज दिया। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को 9 फॉर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं वो भी सीखेंगे, और आइडेंटिटी कैसे क्रिएट हुई उसका भी आइडिया ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let ABC is a right angle triangle, right angle let B. So for angle C's point of view, this is perpendicular, this is base, and AC is hypotenuse. So you all know that according to the Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equal to AC square. Now dividing all these with AC square, what we get? AB upon AC square, BC square upon AC square is equal to AC square upon AC square. So AB upon AC whole square, this will become BC upon AC whole square. AC upon AC is AC upon AC whole square. AB upon AC becomes sin square A. BC upon AC, base upon hypotenuse is cos, and AC से AC कट के is 1. So we will get first identity sin square A plus cos square A is equal to 1. Similarly, by dividing all these sides with AB square, then we will divide all these 3 with BC square, and we will get 2 more identities. कौन कौन सी identities आ जाएंगी? Sec square A minus tan square A is equal to 1. Cosec square A minus cot square A is equal to 1, and sin square A plus cos square A is equal to 1. ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाई दी है। Next, now this can be written as sin square A plus cos square A is equal to 1. Can be written as, to find the value of sin square A, cos square A इधर के माइनस हो जाएगा। So cos sin square A is equal to 1 minus cos square A, and sec square A will become 1 plus tan square A, and cosec square A will become 1 plus cot square A. इसी तरीके से अगर हम और प्रोसीड करेंगे तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? cos square A is equal to 1 minus sin square A. tan square A से जाके पॉजिटिव हो जाएगा, so tan square A is equal to sec square A minus 1. cot square A is equal to cosec square A minus 1. so 3 आइडेंटिटीज को हम 9 डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। अभी इन्हीं आइडेंटिटीज को आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाया हुआ मैंने, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपके पास 3 सेकंड का एक विंडो है, आप उसमें इजीली इनको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज करके रिकॉर्ड भी नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक आपके पास रेडी है, पेज नंबर 193, एक्सरसाइज 8.4। कुछ सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3 के जो 2 पार्ट्स हैं वो अभी टेम्परेरीली डिलीट हो गए लॉकडाउन की वजह से, सिलेबस जो रिड्यूस हुआ उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। 8.4 फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, जो कि है 9 sec square A minus 9 tan square A। अब कैसे सॉल्व करना है? जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हैं, 9x square minus 9y square, so 9 is common between them, 9 कॉमन लेना है, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x square minus y square, sec square A minus tan square A। अब यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देना। आइडेंटिटी आपके पास लिखी हुई है, 9 into what is x square A minus tan square A? This is equal to 1, so answer is 9। कौन सा ऑप्शन है 9? 9 हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन में बी पार्ट, सो बी इज द ऑप्शन। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पार्ट नंबर 2, 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta। एक चीज मैं आपको वापस रिकॉल करा दूं, sin theta is reciprocal of cosec theta, cos theta is equal to 1 upon sec theta, tan theta is 1 upon cot, and tan theta is equal to sin theta upon cos theta, and cot theta reciprocal है, so cot theta will be cos theta upon sin theta। इनका भी यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। So 1 is same, tan theta is sin theta upon cos theta,
sec theta is 1 upon cos, cot is cos upon sin and cosec is 1 upon sin. तो क्वेश्चन में क्या है, जो भी फॉर्म दी हुई है इन सब रेशियोज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। एक ये प्रिंसिपल है सिंपल। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल अलजेब्रिक क्वेश्चन, इन तीनों का एलसीएम बन गया आपका cos थीटा। नाउ 1 into cos थीटा इज cos थीटा, सो न्यूमरेटर में भी आ जाएगा cos थीटा सेम है प्लस sin थीटा प्लस 1 into इधर एलसीएम हुआ sin थीटा, सो 1 के साथ sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। सो क्या होगा, अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर बन जाएगा sin थीटा cos थीटा, और न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में देखो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। सो a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इट विल बिकम sin थीटा प्लस cos थीटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय sin थीटा cos थीटा। नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी की है ना आपने अभी। सो 1 माइनस 1 इज 0, बचेगा क्या हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा cos थीटा, 2xy अपॉन xy, xy आपस में कट गए एंड द आंसर इज 2। थर्ड क्वेश्चन इज sec a plus tan a into 1 minus sin a। वही प्रिंसिपल है, जो भी फॉर्म्स हैं इनको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो sec a is 1 upon cos a, tan a is sin a upon cos a, और ये तो साइन की फॉर्म में है ही है। तो इधर एलसीएम हो गया हमारे पास cos a 1 plus sin a एंड दिस साइड इज सेम 1 minus sin a। इसको अपॉन 1 भी लिख सकते हैं समझने के लिए अभी, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, a plus b into a minus b is a square minus b square upon cos a। now 1 minus sin square a upon cos a। so 1 minus sin square a is cos square a। फर्स्ट आइडेंटिटी है ना, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, sin square a plus cos square a is equal to 1। so cos square a is 1 minus sin square a इधर आके माइनस हो गया तो बन गया cos square a। ठीक है, इसका हमने यूज किया है यहाँ पर। so cos square a upon cos a, x square upon x is x, एक पार्ट कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा cos a। तो cos a आप देखो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ पार्ट इज 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a। नाउ आइडेंटिटी याद करो स्टूडेंट, सेकंड आइडेंटिटी sec square a minus tan square a is equal to 1, तो क्या बन जाएगा 1 plus tan square a is equal to sec square a, और 1 plus cot square a will become cosec square a। now sec square a is, sec is reciprocal of, याद करो sec is reciprocal of cos, so 1 upon cos square a divided by cosec is 1 upon sin, so cosec square a is 1 upon sin square a। this will become 1 upon cos square a into reciprocal हो जाएगा sin square a upon 1, so it will come to be sin square a upon cos square a, and sin upon cos is tan, so sin square a upon cos square a is tan square a, जो ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 6, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करा देता हूं। फर्स्ट टाइप क्या है, जिसके अंदर आपको सिंपल साइन और कॉस में कन्वर्ट करनी वैल्यूज, और उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और ये सब चीजें लग जाएंगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है जहां पर चीजें
1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, रूट्स में है क्वेश्चंस, और इधर है sec a tan a, ऐसा कुछ प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो ऐसे केस में हम LHS और RHS को अलग अलग भी ले सकते हैं और इसको सॉल्व करते करते इस तक भी पहुंच सकते हैं, दोनों मैं आपको दिखा देता हूं। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपको रैशनल नंबर में रैशनलाइजेशन याद होगा, हम उसका यूज करते हैं। रैशनलाइजेशन है नहीं बट वो मेथड सेम है। जहां पर साइन सेम है आप मल्टीप्लाई करिए साइन चेंज करके, 1 अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। किस लिए किया हमने ऐसा? ताकि डिनोमिनेटर में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या होगा? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। So in the next line it will become root of 1 plus sin a whole square and denominator identity 1 minus sin square a is cos square a, identity number 1 याद आ गई। अब स्क्वायर हट जाएंगे, अनपेयर्ड चीजें बाहर आ गई, 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया और cos square a, स्क्वायर से रूट कटेगा, ये आ गया हमारे पास cos a, ठीक है। अभी साइन और कॉस इररिड्यूसिबल फॉर्म में आ गया, हम इसको भी वहां तक ले जा सकते हैं, पर दूसरा ऑप्शन है कि RHS को LHS को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। नाउ sec a प्लस tan a, वही साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। sec a इज 1 अपॉन cos a, tan a इज sin अपॉन cos, ठीक है। चीजें वही है, उनको इंटर रिलेशन मिक्स करके यूज करना है। 3 आइडेंटिटीज इन द 9 फॉर्म्स एंड 6 रेशियोज। ये बन गया हमारे पास cos a LCM 1 plus sin a, so LHS is equal to RHS। इस तरीके से हम इसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 8। मैं बीच बीच से अलग अलग पार्ट्स इसलिए ले रहा हूं ताकि एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आ जाए। सारे क्वेश्चन तो एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, मैं अलग अलग वीडियोस में डाल दूंगा। तो यहाँ पर है साइन a प्लस कॉसेक a होल स्क्वायर, हम का वन करते हैं, जल्दी कर लो शुरू से। क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं, 8 पार्ट, अलग अलग पार्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके पास एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाए। साइन a प्लस कॉसेक a होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a होल स्क्वायर प्रूव करना है इक्वल करके 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। सिंपल फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज और कौन किसका रेसिप्रोकल है, ये दोनों चीजों का यूज करना है, या फिर जहां पॉसिबल हो वैल्यूज को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो यहां सिंपल आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसको ब्रेकअप कर लो, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a, ठीक है। इससे ज्यादा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब चीजें रिकलेक्ट करते हैं, साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर भी मैं इसको आपके लिए रीअरेंज कर देता हूं, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, एक एक चीज को अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि कुछ मिस ना हो जाए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए आपको सिखा रहा हूं। नाउ cosec square a is, what is the identity of cosec square a? It is 1 plus cot square a, and sec square a is 1 plus tan square a. Now 2 sin a cosec a, 2 into sin a. Now what is cosec a? Cosec a is 1 upon sin a plus 2 cos a, sec a is 1 upon cos a, ठीक है। ये हमने सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस, नाउ cot स्क्वायर a इज cot स्क्वायर a, इसको तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि आंसर में चाहिए हमको यहाँ पर, प्लस 1
प्लस tan स्क्वायर ए भी अटैच्ड है, प्लस साइन से साइन कटेगा बचेगा 2, इधर cos से cos कट के बचेगा 2। सो 1 + 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट किया, आपके कमेंट्स के थ्रू, आपके व्हाट्सएप्स के थ्रू, और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो असाइनमेंट मैं आपको टाइम टू टाइम सेंड कर दूंगा। और तब तक के लिए आप खूब प्रैक्टिस करिए, बहुत मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक।